how are you all? I hope you all are doing good. Today we are going to study plants, forms and functions. Ready, steady, start. In the table given below, write the names of at least 2 plants categorized as herbs, shrubs, creepers, climbers and trees. Give one property of each plant. ये आप खुद से करेंगे. Concepts to know. Categories of plants, parts of plant, root system, shoot system, leaf, flower, pollination. There is a variety of plants in our surrounding which can be classified on the basis of presence of flowers, size, lifespan, habitat, etc. Some have flowers while some do not have flowers. Some are small while some are big. Similarly, there are a number of other differences between plants based on which they are grouped into various categories. Okay, देखिए हमारे अराउंड डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स होते हैं, ठीक है, वो डिफरेंट बेसिस पर भी कैटेगराइज्ड होते हैं, जैसे कि फ्लावर, साइज, लाइफ स्पैन, हैबिटेट. ओके, तो आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे. कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट. Those plants which complete their entire life cycle from seed to flower within one growing season or within 1 year are called annuals. Rice, mustard and maize are annuals. Okay, वो प्लांट्स जो कि अपना एंटायर सर्कल कंप्लीट कर लेते हैं सीड से लेके प्लांट तक का, उन्हें हम बोलते हैं एनुअल्स. ओके, नाउ इसके एग्जांपल्स है राइस, मस्टर्ड. ओके, प्लांट्स विच कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन 2 years आर कॉल्ड बेनियल्स. एग्जांपल रेडिश, टर्निप एंड कैरेट. प्लांट्स विच लिव फॉर मोर देन 2 years आर कॉल्ड पेरिनियल्स. एग्जांपल मैंगो, नीम, अकाइका एंड आर पेरिनियल्स. ओके, देखिए वो प्लांट्स जो कि 2 साल में अपना लाइफ सर्कल कंप्लीट करते हैं उन्हें हम बेनियल्स बोलते हैं, जैसे कि रेडिश और टर्निप. वहीं कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि जो 2 साल से ज़्यादा टाइम लेते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं पेरिनियल्स, जैसे कि मैंगो ट्री. Okay, name categories of plants. On the basis of type of stems and branches, plants can be classified as herbs, shrubs and trees. Okay, देखिए stems और branches के basis पर हमने plants को classify किया है herbs, shrubs और trees में. Now, herbs. Some plants with tender green stems are called herbs. Branches cannot be broken easily by bending. Such plants do not have many branches. Example of herbs include coriander, mustard, wheat, petunia, basil, tulsi, mint, paddy, etc. ओके, देखिए हर्ब्स जो होते हैं बहुत स्मॉल प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उनकी जो स्टेम्स होती है वो ग्रीन होती है. अगर आप उन्हें इस तरीके से टर्न करेंगे तो वो इजीली टूटेंगी नहीं, ठीक है. इनके एग्जांपल्स हैं कोरिएंडर, मस्टर्ड, वीट, तुलसी, मिंट, पैडी. ओके, श्रब्स. These are medium-sized plants with strong brown colored woody stems. They have branches that arise near the base of the plant, giving it a bushy appearance. Examples include rose, hibiscus, jasmine, lemon, bougainvillea, tea, cherry, rose and lantana, etc. Okay, देखिए श्रब्स जो होते हैं वो हर्ब से थोड़े बड़े प्लांट्स होते हैं. इनकी स्टेम्स जो होती हैं वो वुडी होती हैं और वो थोड़ी सी बड़ी होती हैं और उनका जो स्ट्रक्चर है, ब्रांचेस है, वो इस तरह से फैली होती है कि वो उन्हें बुशी बनाता है एक तरीके से, ठीक है. नाउ इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो है हिबिस्कस, जैस्मिन, लेमन, रोज. ट्रीज. दीज आर बिग एंड टॉल प्लांट्स विद हार्ड एंड थिक ब्राउन स्टेम्स. ब्रांचेस आर प्रेजेंट इन द अपर पार्ट ऑफ द स्टेम much above the ground. A tree has a thick woody stem called a trunk, with the branches coming out of trunk high up above the ground. Examples include neem, peepal, mango, apple, almond, oak, rubber and jamun, etc. Okay, देखिए ट्रीज जो होते हैं उनकी स्टेम नहीं होती, वो ट्रंक होता है एक तरीके से, वो ग्राउंड से काफ़ी हाइट पे होता है जहाँ से आपकी ब्रांचेस निकलनी शुरू होती हैं. ये थिक होता है, ब्राउन कलर का होता है, इसे ट्रंक बोला जाता है और ब्रांचेस भी काफ़ी थिक आती हैं इसकी और उसके बाद वहाँ से लीव्स बननी शुरू होती हैं, ठीक है. इसके एग्जांपल्स हैं नीम, पीपल, मैंगो, एप्पल. ओके, नाउ the types of plants, that is herbs, shrubs and trees, are plants with strong stems. Their stems can keep the plant erect. But there are 2 other categories of plants called vines which need support to grow as they have weak stems and cannot stand straight on their own. These categories are as follows. Okay,
अभी हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ा जो कि ग्राउंड से ग्रो करते हैं और वो खुद पर ही खड़े होते हैं। ओके, नाउ कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि ग्रो तो ग्राउंड से होते हैं लेकिन स्टैंड नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे की जो एग्जांपल्स हैं वो है क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स। तो आइए क्रीपर्स के बारे में जानते हैं। प्लांट्स दैट कैन नॉट स्टैंड upright and spread horizontally on the ground and cannot grow erect even if they are provided some support. That's why those who crawl on the ground are called creepers. Watermelon and pumpkin are examples of creepers. Okay, ये plants जो होते हैं ये सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं, तो इनकी जो stems हैं वो भी up straight नहीं हो सकती हैं। तो ये क्या करते हैं, creep करते हैं, ground पे फैल जाते हैं, एक तरीके से इनकी बेल होती है जो फैल जाती है। इसके examples है watermelon and pumpkin. Climbers, plants which can climb up with the support of neighboring structures are called climbers. Some example of climbers are pea plant and money plant. वो प्लांट जो किसी का भी सहारा लेके क्लाइंब कर जाते हैं, ऊपर की तरफ चढ़ जाते हैं, उन्हें हम क्लाइंबर्स बोलते हैं। इनके जो एग्जाम्पल्स हैं वो है पी प्लांट एंड मनी प्लांट। एनालाइजिंग विजुअल, you can determine approximate age of a tree by counting the rings on the tree trunk. आप किसी भी ट्री की एज जान सकते हैं उस ट्री पे जो उस ट्री के ट्रंक पे जो रिंग्स बनी होती है, अगर वो काउंट कर लेंगे आप तो आप जान सकते हैं कि उसमें कितने ईयर्स जिए हैं। ओके, Activity 1. Visit a nearby park or garden in your area. Make a list of different types of plants found there. Categorize them according to their size and features as herbs, shrubs, trees, creepers and climbers. Try to find out their biological names. ये आप खुद से करेंगे। Parts of a plant. A plant can be divided into two essential parts. An underground part which consists of root is called the root system. An overground part which consists of stem, branches, leaves, buds, flowers, fruits and seed is called the shoot system. Okay, देखिए प्लांट के जो पार्ट्स हैं वो टू कैटेगरीज में बांटे गए हैं। पहला जो आपका है वो रूट्स है जो कि ग्राउंड के नीचे होता है, उसे हम बोलते हैं रूट सिस्टम। और दूसरा जो है वो आपके ग्राउंड के ऊपर होता है जिसमें आ जाती है आपकी स्टेम, ब्रांचेस, फ्लावर, लीव्स, फ्रूट्स, सीड्स। ओके, नाउ उसको हम बोलते हैं शूट सिस्टम। यहाँ पे देखिए पार्ट्स बताए हुए हैं प्लांट्स के, ठीक है। रूट सिस्टम और शूट सिस्टम दोनों को अलग अलग बताया गया है। रूट सिस्टम, द रूट सिस्टम मेनली कंप्राइजेज ऑफ रूट्स। रूट सिस्टम में क्या होते हैं, रूट्स ही होते हैं, ग्राउंड के नीचे तो रूट्स ही होते हैं। रूट, whenever a gardener or farmer pulls out weed from the field, he has to apply some effort to dig them out. We cannot easily pull out plants from the soil. We have to dig them out gently around the roots, taking care not to damage them too much. You may have seen that the roots of some trees are exposed whenever the soil is dug for making roads and buildings. They start dying up soon. A root is the underground non-green part of the plant which fixes it to the soil. Okay. जब भी कोई गार्डनर किसी वीड को अगर अपराइट अपनी तरफ खींचता है थ्रू रूट्स, वो इजी नहीं होता क्योंकि रूट्स जो होती है वो सॉइल से बिल्कुल बंधी हुई होती हैं एक तरीके से। अगर आप उन्हें खींचेंगे तो फिर या तो वो स्टेम के थ्रू टूट जाएंगी और आपको उन्हें अगर निकालना ही है और दूसरी जगह ग्रो करना है तो उनकी रूट्स को परफेक्टली आपको डिग करना पड़ेगा। ओके, नाउ जो नॉन रूट्स जो होती हैं वो नॉन ग्रीन पार्ट होता है प्लांट का, ठीक है, जो कि सॉइल से फिक्स्ड होता है। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। रूट सिस्टम टू टाइप्स का होता है, एक होता है टैप रूट, दूसरा होता है फाइब्रस रूट। देखिए यहाँ पिक्चर में बताया हुआ है टाइप्स ऑफ रूट। नाउ टैप रूट, there is a main root called the taproot which is long and thick and grows straight downwards. Smaller roots called the lateral roots or secondary roots arise from the taproot. The taproot is found in plants like pea, gram, mustard, carrot, tulsi, sunflower, mango and neem. Okay, देखिए टैप रूट क्या होता है, ये एक तरीके से लॉन्ग रूट्स होती हैं जो कि ग्राउंड में जाती हैं, थिक होती हैं, स्ट्रेटली डाउनवर्ड्स जाती हैं। नाउ ये स्मॉलर रूट्स जो इनकी जो स्मॉलर इस
लॉन्ग रूट से कुछ स्मॉलर रूट्स निकल के आती हैं जिन्हें हम बोलते हैं लेटरल रूट्स या फिर सेकेंडरी रूट्स। ओके, इसके एग्जाम्पल्स होते हैं पी, ग्राम, मस्टर्ड, तुलसी, सनफ्लावर। ओके, फाइब्रस रूट्स, a number of similar sized roots arise in a cluster below the system and spread out in the soil. Barley, wheat, sugarcane, banana, maize and grass have fibrous root system. ओके, देखिए fibrous root क्या होती है, ये spread हो जाती है soil में जाके, ठीक है। Now इसके जो examples हैं वो है barley, wheat, sugarcane, banana, maize. ओके, functions of roots. Roots anchor fix the plant to the soil. They absorb water and other nutrients which are required for healthy growth of the plants from the soil. The materials absorbed through the root hair move upward to the various parts of the plant. They also help in holding the soil particles together. Thus, they prevent the erosion of soil by wind and water. They store food and nutrients for the future use of the plant. Some trees have roots that arise from the stem and grow upside down to the soil for support. These roots are called prop roots. Examples of prop roots are banyan and mangrove roots. Okay. Functions क्या होते हैं roots के? Roots जो हैं प्लांट को सॉइल से फिक्स करके रखती है। पहली चीज़, जो रूट्स हैं वो वाटर एब्जॉर्व करती है और वाटर एब्जॉर्व करती है प्लस सॉइल से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्व करती है एंड देन उस प्लांट के जो बाकी पार्ट्स हैं उन तक उन वाटर और न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाती है। ओके, सॉइल पार्टिकल्स को एक साथ रखती है, सॉइल इरोजन से बचाती है। ओके, नाउ कुछ ट्री के रूट्स ऐसे होते हैं जो कि स्टेम से भी निकलते हैं। ऐसे ट्री के रूट्स को हम बोलते हैं prop roots. Okay, इसके examples है banyan and mangrove roots. Activity 2. Objective. Whether the roots absorb water and nutrient from the soil. Procedure. Take 2 pots filled with soil and label them as A and B. Take 2 plants of the same type from your garden along with their roots. Put one of the plants in pot A. Now cut the roots of the second plant and put the plant in pot B. Water both the plants daily. Observation. Observe the pots after 2-3 days. The plant in pot A remains healthy, whereas the plant in pot B wilts, bends towards the ground and dries up even after getting water. Inference. This proves that roots absorb water and minerals from the soil which are important for the survival of a plant. ये आप खुद से करेंगे. Activity 3. Objective. To show that roots hold the plenty firm in the soil. Procedure. Take some seeds of gram and put them in the soil and sprinkle a little water every day. After a week after germination of seed, pull out the seedling. Do not apply force to pull the seedling. Let the other seedling grow a little longer for 1 more week. Now try to pull out. Apply a force to pull the plant out. Observation. The roots cling to the soil and it is difficult to pull them out. Inference. It shows that the roots hold the plenty firmly in the soil. ये आप खुद से करेंगे. Shoot system. Shoot system comprises of plant parts that grow above the ground. These include stem, branches, leaves, flowers, buds, fruits and seeds. Okay. शूट सिस्टम हमने पढ़ा था, हमने रूट सिस्टम देखा कि जो ग्राउंड के नीचे होता है और शूट सिस्टम वो होता है जो ग्राउंड के ऊपर होता है। मतलब कि आपका प्रॉपर जो प्लांट होता है वो ग्राउंड के ऊपर होता है। उसमें आपका आ जाता है स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स, सीड्स, बर्ड्स, फ्रूट्स। ओके, स्टेम. The stem is the long central and the main axis which bears all other parts of the shoot system. The stem of a plant has nodes and internodes. Nodes are the points of attachment of leaves and stem between 2 nodes is called internodes. The tip of the stem or a branch bears a bud is called a apical bud or the terminal bud. The bud helps in the growth height of the plant. Leaves make an angle with the stem at the point of attachment which is known as the axil. On the axils, buds are present. These buds are therefore called axillary buds and give rise to the branches or flowers. Okay, साइड में देखिए शूट सिस्टम प्रॉपरली आपको दिखाई दे रहा है. ओके, स्टेम है,
स्टेम में नोड्स एंड इंटरनोड्स शो हो रहे हैं, ठीक है। नाउ ऊपर जाएंगे आप, आपको बड दिखेगा जिसको हम टर्मिनल बड भी कहते हैं, एपिकल बड या फिर टर्मिनल बड। नाउ ये जो प्लांट है, रूट से इसको मिनरल्स मिलते हैं, वाटर मिलते हैं, जो कि इसके बाकी एरियाज में जाते हैं, जितने भी पार्ट्स हैं इनमें जाते हैं, जिसकी वजह से ये ग्रो कर पाता है, ठीक है। नाउ a tree has hard and woody stem called the trunk, which is brownish in color. A herb has green and tender stem. Climbers and creepers have weak stem. Okay, देखिए जो ट्री होता है उसकी जो स्टेम होती है बहुत हार्ड होती है, ब्राउन होती है कलर में, और उसको हम बोलते हैं ट्रंक। वहीं हर्ब की जो स्टेम होती है वो ग्रीन कलर की होती है और टेंडर होती है। क्लाइंबर्स और क्रीपर्स की जो स्टेम होती है वो बहुत वीक होती है और ग्रीन कलर की होती है। Functions of stem. Stems help to keep the plant upright. They give support to the plant and a place of flowers, leaves and fruits to grow. They also help in transport of water and nutrients from one part of the plant to another. When young, the green stem prepares food through photosynthesis. In some plants, it is modified to store food. For example, potato, onion, garlic, ginger and turmeric are all have edible stems. Okay, देखिए स्टेम्स जो होती हैं वो स्ट्रेट होती हैं, अपराइट, अप ऊपर की तरफ स्ट्रेट आती हैं, ठीक है। नाउ वो सपोर्ट करती हैं प्लांट को और उनकी जो भी ब्रांचेस निकल के आती हैं उन्हें, ठीक है। नाउ जो रूट से वाटर एंड मिनरल स्टेम्स के थ्रू ही पूरे जो प्लांट के पार्ट्स हैं उसमें जा पाता है, ठीक है। कुछ प्लांट्स जो कि ऐसे होते हैं जो फूड स्टोर करते हैं, ओके, उनका एग्जाम्पल है पोटैटो, अनियन, गार्लिक, जिंजर, टर्मरिक, ओके। In cactus, the stem becomes fleshy and green and prepared food for the plant. Okay, cactus की जो stem होती है वो fleshy होती है और green होती है, तो उसी में ही photosynthesis process होता है। Visual literacy. Sometimes root can be above the ground. This is called aerial root. Example, the stem of Metrosideros excelsa can also sometimes be under the soil. Example, potatoes. Okay. कुछ रूट्स ऐसी होती हैं जो ग्राउंड के अबव भी होती हैं, एग्जाम्पल एरियल रूट, ठीक है। ये पाई जाती हैं आपकी किस स्टेम्स में, मेट्रोसाइडरोस एक्सेल्सा के, ओके। और कुछ और एग्जाम्पल्स भी हैं जैसे कि पोटैटोस। एक्टिविटी 4, ऑब्जेक्टिव, टू चेक वेदर द स्टेम कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स टू अदर प्लांट पार्ट्स। प्रोसीजर, take half of bottle of water and add a few drops of red ink to it. Now gently pull out the petunia plant from the soil, cut off its roots and put the plant into the bottle of red water. Observation, red lines of the petals of the flowers appears. Inference, stem conducts water and minerals. In this case of red ink, the other parts of a plant. ये आप खुद से करेंगे। Leaf. A leaf is a flattened green structure which arises from the node of the stem of the branches. It serves as a chief food producing organ in most plants. Okay, सबको पता है लीफ क्या होती है, ब्रांचेस के थ्रू लीव्स ही ग्रो करती हैं और लीफ ही मेन पार्ट होता है जहाँ से फूड जो है बनना शुरू होता है। ओके, लीव्स आर फाउंड इन डिफरेंट साइजेस, शेप्स, थिकनेस एंड ग्रोथ पैटर्न्स. The green color of the leaves is due to the presence of substance called chlorophyll. Petiole and leaf blade or lamina are two main parts of leaf. Okay, देखिए leaves जो होती हैं different sizes, shapes, thickness और growth में होती हैं. अब जो लीव्स होती है वो आपकी ग्रीन होती है, वो इस वजह से होती है क्योंकि उसमें एक सब्सटेंस होता है जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं. उस क्लोरोफिल की वजह से लीव का जो कलर होता है वो ग्रीन होता है. ठीक है. अब पेटियोल और लीफ ब्लेड या फिर लैमिना ये कुछ पार्ट्स हैं लीफ के. नाउ पेटियोल. Petiole is the small cylinder shaped that attaches the leaf to the stem of a plant. ओके, देखिए पेटियोला क्या होता है, एक तरीके से सिलेंड्रिकल शेप का होता है और ये लीफ को स्टेम से अटैच करके रखता है. ओके, लैमिना. लैमिना इज द मेन ग्रीक फ्लैट पार्ट ऑफ द लीफ. लैमिना क्या होता है, लीफ का मेन ग्रीन फ्लैट पार्ट होता है. पिक्चर में देखते रहिए, आपको पता चलता रहेगा. ओके, the petiole continues into the lamina
in the middle as a thick vein called the midrib. The midrib emerges in the form of small veins, forming a network across the entire surface of the lamina. The arrangement of veins in the leaf blade is called venation. Leaf venation is of two types, reticulate venation and parallel venation. देखिए अब ये जो मिड रिब है दिख रही है आपको इजीली, और इस मिड रिब से वेन्स बनती हुई जाती हैं. अब ये जो वेन्स है इसको लीफ वेनेशन कहा जाता है. ठीक है, अब ये टू टाइप्स की होती है, एक है रेटिकुलेट वेनेशन और एक है पैरेलल वेनेशन. इन रेटिकुलेट वेनेशन द वेन्स आर अरेंज्ड इन अ नेट लाइक पैटर्न on both sides of the midrib. Reticulate leaf venation is present in plants having a taproot system. Most of the plant leaves have reticulate venation. This type of venation is called feather venation because it resembles the shape of the feather. Such venation is seen in leaves plants like pea, petunia, gram, rose, mango and guava. Okay. Reticulate venation क्या होती है? जो लीव में एक वेब की तरह अपनी वेन्स को स्प्रेड करती है उसे हम बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन. ओके, अब इसके एग्जांपल्स हैं आपके पास पी, पेटूनिया, ग्राम, मैंगो. इनकी जो लीव्स होते हैं वो इसी तरीके से होते हैं कि एक वेब बना के रखते हैं. ठीक है, अब पैरेलल वेनेशन. द वेन्स रन पैरेलल टू वन अनदर ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द मिडरिब. Parallel leaf venation is present in plants having fibrous root system. A common plant having parallel venation is a grass. The parallel venation is seen in leaves of plants like grasses, bananas and palms. Okay, हमने fibrous root system के बारे में पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले. ठीक है, तो fibrous root system के जो trees होते हैं उनके जो leaves होते हैं वो mainly parallel venation के होते हैं. तो उनकी बोथ साइड जो वेन्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं. आप एग्जांपल में देख सकते हैं, यहाँ पे ट्रीज पिक्चर दिखाई गई है. ठीक है, अब इनके एग्जांपल्स है, ये मोस्टली पाए जाते हैं ग्रासेस में, बनाना में या फिर पाम्स में. वेन्स परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस. दे ट्रांसपोर्ट वाटर एंड फूड. दे प्रोवाइड सपोर्ट टू द लीफ. वाटर और फूड ट्रांसपोर्ट करते हैं लीफ के बॉडी पार्ट्स में एंड सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं लीफ को. ठीक है, फंक्शंस ऑफ लीफ. बाय फोटोसिंथेसिस अ लीफ मेक्स फूड फॉर द प्लांट. इट प्रिपेयर्स फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ऑक्सीजन इज रिलीज्ड बाय अ बाय प्रोडक्ट. प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर थ्रू स्टोमेटा प्रेजेंट इन द लीव्स. द फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. ओके, देखिए फोटोसिंथेसिस ये एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू जो लीव्स है वो फूड बनाती है. हमें सबको पता है ये. ठीक है, नाउ अब फूड बनाने के लिए सनलाइट चाहिए, क्लोरोफिल जो ग्रीन पिगमेंट होती है लीव में वो ज़रूरी होनी चाहिए. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया. ठीक है, और इस प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होती है. ठीक है, नाउ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस take place through the leaf, that is carbon dioxide and oxygen, between the plant and the atmosphere through tiny pores called stomata present on its surface. Okay, देखिए leaves में छोटे छोटे pores आपने देखे होंगे. जो छोटे pores होते हैं उन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं. तो जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चल रहा होता है तो उस टाइम पे जो दो गैसेज हैं वो इनटेक होती हैं और एग्जिट होती हैं. तो दो गैसेज हैं जो जिनका एक्सचेंज होता है वो है आपकी ऑक्सीजन. ऑक्सीजन जो है वो बाहर आती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इनटेक होती है स्टोमेटा में. ओके, द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर थ्रू द लीव्स इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन. अ प्लांट गिव्स आउट एक्स्ट्रा वाटर from the leaf in the form of water vapor through stomata. Transpiration help to keep the plant cool. Okay, देखिए अब ये जो प्रोसेस चल रहा है इस टाइम पे वाटर का जो लॉस है वो होता है किस फॉर्म में होता है? वेपर के फॉर्म में होता है. ठीक है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन. ओके, अब ट्रांसपिरेशन जो है वो हेल्प करता है प्लांट को कूल रखने में. ओके, इन सम अदर प्लांट्स लाइक कैक्टस the leaves are reduced to spines to prevent water loss. In some plants like onion, leaves are modified in store food. The leaves of plant like pitcher plant are
modified to trap insects to fulfill their nutritional requirements. Okay. कैक्टस जैसे है, कैक्टस के जो हमें पता है कैक्टस प्लांट जो होता है उसके लीव्स नहीं होते, वो रिड्यूस होके स्पाइन्स में आ जाते हैं, तो वो वाटर स्टोर करके रखते हैं अपने लिए, ठीक है। अब अनियन हो गया, अनियन भी अपना जो फूड है वो अपने लीव्स में स्टोर करके रखता है। वहीं जो पिच्चर प्लांट है वो इस तरीके से मॉडिफाई हुआ है कि वो इंसेक्ट्स को इनटेक करके अपने न्यूट्रिशन कंप्लीट करता है। ओके। एक्टिविटी 5, objective to show the transpiration of plants, materials required, a potted plant, a transparent polythene bag and water. Procedure: take the potted plant and water it, cover the plant with the polythene bag, wrap it at the base of the stem, keep the pot in sunlight for 4 to 5 hours. Observation: tiny drops of water on the inner side of the polythene bag. Inference: कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर रिलीज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांसपीरेशन। ये आप खुद से करेंगे। फ्लावर: अ फ्लावर इज द मोस्ट ब्राइट एंड कलरफुल पार्ट ऑफ द प्लांट। अ ह्यूज वेराइटी ऑफ फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट साइजेस, शेप्स, टेक्सचर, कलर्स एंड स्मेल्स आर फाउंड इन नेचर। अ फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट विच लेटर डेवलप्स इनटू अ फ्रूट। ओके, फ्लावर कलरफुल पार्ट होता है, ठीक है, डिफरेंट साइज का, शेप का, कलर का, और फ्रेग्रेंस मतलब कि खुशबू का पाया जाता है, ठीक है। अब ये फ्लावर्स जो होता है ये प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जो कि ग्रो करके फ्रूट बनता है, ठीक है। द फ्लावर हैज 4 सेट्स ऑफ पार्ट्स अरेंज्ड इन रिंग्स और वोल्स, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रियोसियम एंड गाइनियोसियम। ओके, इसके 4 पार्ट्स बताए गए हैं। अब देखिए आते हैं उनके बारे में, यहाँ पे पार्ट्स भी बताए गए हैं फ्लावर के, आप देख सकते हैं सारे पार्ट्स: पेटल, एंथर, फिलामेंट, सेपल, ओव्यूल, पेडिसेल, ओवेली, स्टाइल, स्टिग्मा। ओके, इनको हम बोलते हैं पिस्टल, इन 3 को स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी को, और यहाँ पे एंथर और फिलामेंट को स्टेमन बोला जाता है। सेपल, अब पिक्चर में देखिए पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर में आपको दिखेगा कि सेपल होता क्या है। ग्रीन पार्ट जो होता है वो सेपल होता है। जब फ्लावर ग्रो नहीं किया होता है, एक बड ही होता है जो क्लोज होता है, तो उनके जो अंदर के जो पेटल्स होते हैं, रियल पेटल्स, उनको वो प्रोटेक्ट करके रखता है, किससे? सेपल से। ओके, अब देखते हैं पेटल्स क्या होते हैं। द नेक्स्ट होल दैट इज कोरेला कंसिस्ट ऑफ पेटल्स। पेटल्स आर द मोस्ट विजुअल, आर important part of the flower and are visually bright colored. They may be scented to attract insects or pollination. The whole formed by petals are called corolla. देखिए petals क्या होते हैं? जो फ्लावर की पत्तियां होती हैं उसे हम पेटल्स कहते हैं। वो मेनली ब्राइट कलर्स की होती हैं, उनसे फ्रेग्रेंस मतलब कि खुशबू भी आती है जो कि इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, ठीक है, पॉलिनेशन के लिए। Now, as we remove petals or sepals, we get the third whole, which are androsium. It consists of stamens. Stamen is the male reproductive part of the flower. Each stamen consists of 2 parts, a thin long stalk called a filament and a knob-like structure at the tip of the filament called the anther. The anther produces a large number of male gametes known as pollen. पेटल्स एंड सेपल्स को जब आप हटाओगे तो आपको थर्ड वॉल मिलेगा जिसको हम बोलते हैं एंड्रोसियम। ओके, एंड्रोसियम के अंदर जो होता है वो स्टेमन्स होता है। स्टेमन्स क्या होता है? रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, मेल पार्ट होता है फ्लावर का। ओके, अब ये भी जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है आपका फिलामेंट, दूसरा है आपका एंथर। तो एंथर जो है ये प्रोड्यूस करता है लार्ज नंबर ऑफ मेल गैमेट्स को, जिसको हम बोलते हैं पोलेंस। ओके, the anther is the part of stamen that produces and contains pollen grains. Pollen grains are powder-like substances that contain the male gametes or male reproductive parts. देखिए, एंथर से भी हमने जाना कि वो प्रोड्यूस करता है मेल गैमेट्स को, ओके, जिसे हम पोलन ग्रेन्स कहते हैं। अब वो पाउडर लाइक सब्सटेंस होता है जो कि मेल गैमेट से आता है और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ठीक है। द इनर मोस्ट होल ऑफ अ फ्लावर इज गाइनोसियम, consisting of pistil and
Carpel. It is a flask-like structure present in the center of the flower. The carpel is the female reproductive part of a flower made up of three parts: stigma, style and ovary. The swollen portion of the base at the pistil is called ovary. Okay, देखिए इनर मोस्ट पार्ट में अगर हम जाएं तो उसमें जो फ्लावर होता है वो गाइनोसियम होता है, ठीक है, उसमें पिस्टिल होता है या फिर उसको आप कार्पेट भी बोल सकते हो, ठीक है। जो फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर वहाँ पे प्रेजेंट होता है सेंटर में, ठीक है। अब जो कार्पेल होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ठीक है। जैसे कि हमने पढ़ा मेल गैमेट्स जो होते हैं वो पॉलिन्स होते हैं, वहीं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है उसे हम बोलते हैं कार्पेल, ठीक है। अब इसके भी तीन पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ठीक है। द स्वोलन पोर्शन ऑफ द बेस ऑफ द पिस्टिल इज कॉल्ड ओवरी, ठीक है। जो स्वोलन पार्ट होता है इसका उसे हम ओवरी बोलते हैं। इट कंटेन्स ऑफ many bed-like structure called ovules which contain the female gametes. Finally, ovary develops into a fruit and the ovules develop into a seed. The stigma is sticky bulb present in the center of the flower which receives the pollen grain. Style is the long stalk which connects the stigma to the ovary. The ovary is a small basal part of pistil and contains the ovules. Each ovule contains the female reproductive cell or gamete. Okay. ओवरी डेवलप होता है फ्रूट में और ओव्यूल जो है वो सीड में डेवलप होता है। स्टिग्मा जो होता है एक स्टिकी बल्ब की तरह होता है जो कि फ्लावर के सेंटर में होता है, जो पोलन ग्रेन से भरा हुआ होता है, मतलब इट रिसीव्स पोलन ग्रेन्स, ठीक है। स्टाइल लॉन्ग स्टॉक होता है जो कि स्टिग्मा को ओवरी से कनेक्ट रखता है। ओवरी स्वोलन बेसल पार्ट होता है पिस्टिल का और उसमें ओव्यूल्स होते हैं। हर ओव्यूल में फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं। जनरली ऑल द फोर वोल्स आर प्रेजेंट इन देयर फ्लावर्स। सच फ्लावर्स आर कॉल्ड कंप्लीट फ्लावर्स, फॉर एग्जांपल मस्टर्ड, पी, पेटूनिया, हिबिस्कस एंड गुलमोहर। ओके, ये जो फोर होल्स अभी हमने पढ़े हैं जब किसी फ्लावर में होते हैं तो उसे हम कहते हैं कंप्लीट फ्लावर। तो इसके एग्जांपल्स जो हैं वो है मस्टर्ड, पी, पेटूनिया, हिबिस्कस एंड गुलमोहर। If one or more hole is missing in flower, such flowers are called incomplete flowers. For example, date, palm and mulberry. देखिए, अगर एक या फिर एक से ज़्यादा दो होल है वो मिसिंग होते हैं तो उन्हें हम कहते हैं इनकम्प्लीट फ्लावर्स। इसके एग्जाम्पल्स हैं डेट, पाम एंड मलबेरी। लैब एक्टिविटी। Objective: show the different parts of a hibiscus flower. Materials required: a hibiscus flower, a blade, a glass slide, hand lens and water. Procedure: count the number of sepals present in outermost hole and then carefully remove the sepals. See carefully the next hole for its color and the number of petals. Now, without harming the remaining holes, gently remove the petals. On observing the next hole, a tube-like structure with a bulb is seen in its base called ovary. The structure is carpel. It has stigma at the top which is connected to the ovary by style. Observe the style for anthers and pollens. Put the carpel on the glass slide and carefully cut the ovary lengthwise with the help of a blade. Now observe the structure seen inside with the hand lens. Inference: ovules inside the ovary as seen in the picture given alongside. ये आप खुद करेंगे. Functions of flowers. A flower in the reproductive organ of a plant, fruit and seeds are formed it and after the germination of seed a new plant arises. Okay. एक फ्लावर का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसे हम प्लांट बोलते हैं, ठीक है। फ्रूट्स और सीड जब जर्मिनेट होते हैं तो उसके बाद एक वो प्रॉपर प्लांट बनता है, ठीक है। द नेक्टर ऑफ द फ्लावर इज यूज टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स और फॉर पॉलिनेशन। देखिए, नेक्टर ऑफ अ फ्लावर, एक फ्लावर का जो नेक्टर होता है वो इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है। ये पॉलिनेशन के लिए होता है। फ्लावर्स एड कलर टू द सराउंडिंग्स एंड प्योरीफाई द एनवायरमेंट विद देयर फ्रेग्रेंस। फ्लावर्स की वजह से हमारी जो सराउंडिंग है वो कलरफुल होती है और फ्रेग्रेंस भी आती है। फ्लावर्स कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग बुकेज एंड फॉर डेकोरेशन पर्पसेस। बुकेज मतलब फ्लावर्स की जो बुकेज होते हैं, ठीक है, उनके लिए फ्लावर्स यूज किए जा सकते हैं। डेकोरेशन के लिए फ्लावर यूज किए जा सकते हैं। पॉलिनेशन:
The process of transforming of pollen grains from the anther to stigma is called pollination. Okay, transforming of pollen grains फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ये जो प्रोसेस है इसको हम पॉलिनेशन बोलते हैं, ठीक है. द फ्लावर टर्न्स इनटू अ फ्रूट एंड प्रोड्यूसेस सीड्स. दिस हैपेंस ओनली व्हेन द पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा. ओके, जो फ्लावर्स हैं वो फ्रूट में चेंज हो जाते हैं, ये तभी होता है जब जो पोलन ग्रेन्स हैं वो ट्रांसफर हो जाते हैं एंथर या फिर स्टिग्मा में. ओके, नाउ पॉलिनेशन कैन बी सेल्फ और cross pollination. Sometimes pollen may simply get transferred between the stamen and carpel of the same flower or flowers of the same plant without the help of any agent. Pollination can be self or cross pollination. Sometimes pollen may simply get transferred between the stamen and carpel of the same flower or flowers of a same plant without the help of any agent. देखिए, पॉलिनेशन जो है वो सेल्फ भी हो सकती है या फिर क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकती है. कई बार क्या होता है, पोलन जो है वो सिंपली ट्रांसफर हो जाता है स्टैमेन या कार्पल में से, ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है उसे किसी एजेंट की जरूरत पड़ती है. तो वी कॉल दैट सेल्फ पॉलिनेशन. जो बिना किसी हेल्प के ट्रांसफर हो जाता है उसे हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन. बट इफ दिस ट्रांसफर अकर्स बिटवीन द फ्लावर्स ऑफ टू प्लांट्स वी कॉल इट क्रॉस पॉलिनेशन. अगर यही प्रोसेस टू प्लांट्स के बीच में होता है तो इसे हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन. इंसेक्ट, वाटर एंड विंड कैन ऑल्सो हेल्प टू ट्रांसफर द पोलन ग्रेन्स. इंसेक्ट, वाटर और विंड जो है वो हेल्प कर सकते हैं ट्रांसफर पोलन ग्रेन्स में, ठीक है. The result of pollination is that ovary changes into fruit and the ovule change into seed. And when seed are sown in the ground, then on getting favorable conditions for growth, seed develop into seedlings, baby plants. Okay, इसका result क्या होता है, pollination से जो ovary है वो fruit में change हो जाता है और fruit और जो ओव्यूल है वो सीड में चेंज हो जाता है. तो जो सीड्स हैं वो जब दोबारा ग्राउंड में सो की जाती हैं तो वो न्यू प्लांट ग्रो करती हैं. ओके, रीड एट अ ग्लैंस. Plants are usually grouped into herbs, shrubs, trees, climbers and creepers based on their height, stems and branches. A plant can be divided into two essential parts, root system and shoot system. There are two types of root system, taproot and fibrous root. A stem has nodes, internodes, apical buds and axillary buds. The stem varies in herbs, shrubs, trees, climbers and creepers. The roots absorb water and minerals from the soil. The stem conducts water and minerals to the leaves and also holds the other parts of the plant. Leaves of different plants vary in size, shape and even color. A leaf has two parts, petiole and leaf blade or lamina. There are two types of venation, reticule and parallel. Plants having leaves with reticule venation have taproots, while plants having leaves with parallel venation have fibrous roots. The parts of a flower are the sepals, petals, stamens and pistil, carpel. A flower turns into a fruit and ovule turn into a seed after pollination. Key terms to know. Herbs. A small plant having soft green branches that cannot be broken easily by bending. Shrubs. Medium-sized plants with several thin woody stems. Vines. Plants that do not have strong stem to keep the plant erect without any support. Climbers. Plants that climb up with the support and neighboring structures. Creepers. Vines which spread around horizontally on the ground and cannot grow erect even if they are provided some support. Venation. The arrangement of veins in the leaf blade. Stomata. Tiny pores in the leaves of a plant for exchange of gases and water. Leaf venation. Pattern of veins present on leaf of a plant. Complete flower. A flower with all four whorls. Incomplete flower. A flower in which one or more whorls are missing. Pollination. Transfer of pollen grains from एंथर टू स्टिग्मा. सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा. अब इसके एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे.